السلام علیکم۔ تاریخ میں آج کا ہمارا موضوع ہے فاطمی خلافت کا اختتام یا زوال اور صلاح الدین ایوبی کا عروج۔ تو فاطمی خلافت کے آخری خلیفہ العادل ہیں، جس کا دور حکومت ہے 1160 سے 1171۔ تو العادل کا اصل نام تھا ابو محمد عبداللہ بن یوسف، لیکن یہ تاریخ میں مشہور ہے اپنے خلافتی نام العادل دین اللہ، یا مختصر میں العادل عادل۔ تو العادل ان کا مختصر نام ہے، تو العادل کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، اور یہ فاطمی خلافت کے آخری خلیفہ ہیں، اور یہ 14ویں خلیفہ ہے، 14۔ اور انہوں نے 1160 سے لے کر 1171 سال تک حکومت کی۔ جس وقت العادل خلافت کے عہدہ پر فائز تھے، اس وقت مختصر میں ہم ملک شام اور فلسطین کا جائزہ لیتے ہیں۔ العادل کے تخت نشینی سے پہلے دوسری صلیبی جنگ ختم ہو چکی تھی، اور دوسری صلیبی جنگ ہوئی تھی سال 1147 سے لے کر 1150 تک۔ اور دوسری صلیبی جنگ کے سبب یا دوسری صلیبی جنگ کے ہونے کے پیچھے جو وجہ تھا وہ تھا سیج آف ایڈیسا 1144۔ من سال 1140 میں ایڈیسا کا محاصرہ ہوا تھا، اور اس کا محاصرہ کرنے والے کون تھے؟ اس کا محاصرہ کرنے والے تھے امام الدین زنگی، جو کہ زنگی خاندان کے بانی تھے، اور جن کی حکومت موصل، الیپو اور ایڈیسا تک تھی۔ تو امام الدین زنگی جو 1127 سے لے کر 1146 سال تک جو ہے حکومت کیے، اور اپنے فوج سے 2 سال قبل سال 1144 میں ایڈیسا کا محاصرہ کیا، اور یہی محاصرہ دوسری صلیبی جنگ کا سبب بنا۔ تو یہ تھا ایک سیاسی حالت آپ کا ملک شام کا۔ اچھا، جس وقت العادل قاہرہ میں خلیفہ تھے، اس وقت امام الدین زنگی کا لڑکا اور اس کا جانشین نور الدین محمود زنگی دمشق کا امیر تھا۔ مانے باپ کے انتقال کے بعد وہ دمشق کا امیر بن گیا، اور امام نور الدین محمود زنگی 1154 سے 1174 سال تک حاکم بنے رہے یا امیر بنے رہے۔ تو یہ تھا آپ کا ملک شام کے بارے میں۔ دوسری طرف جو فلسطین ہے یا جو یروشلم ہے، وہ پہلی صلیبی جنگ کے وقت ہی ایک کروسیڈر اسٹیٹ بن چکا تھا، یعنی وہاں پر ایک کنگڈم آف یروشلم جو ہے قائم تھا۔ وہاں کے اس وقت کے بادشاہ تھے امورلی، جو 1163 سے 1174 سال تک حکومت کی۔ تو یہ تھا آپ کا ملک شام اور فلسطین کے کچھ سیاسی واقعات۔ فاطمی خلافت کے اختتام کے قریب پورا جو سلطنت کا جو نظم و نسق تھا یا امور جو سلطنت تھا، وہ اس وقت کے جو بھی طاقتور جو وزراء ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں منتقل تھا۔ بادشاہ برائے نام ہوتے تھے، وہ صرف ایک فگر ہیڈ تھے، یہاں تک کہ جو وزیر ہوتے تھے وہ بھی اپنا جو ہے لقب جو ہے سلطان رکھتے تھے، یعنی وہ بھی سلطان کہے جاتے تھے۔ اور جمعہ کا جو خطبہ ہوتا تھا اس میں بھی جو ہے خلیفہ کے ساتھ ساتھ اس کے بھی نام جو ہے پڑھا جاتا تھا، اور شاہی سکوں پر خلیفہ کے ساتھ ساتھ ان کے بھی نام درج ہوتے تھے۔ تو یہ تھا آپ کا قاہرہ میں فاطمی خلافت کے وقت وزیروں کا دبدبہ، اور بادشاہ جو ہے صرف ایک برائے نام تھا۔ تو العادل جب 10 سال کا تھا العادل، تو اس کو جو ہے اس وقت جو وزیر تھے صالح بن رزین، اس نے اس کو تخت پر
बैठा दिया और बैठाते के साथ ही अपने एक लड़की का निकाह जो है अल आदिल के साथ कर दिया। ये एक तरह का सियासी निकाह होता है। इसके पीछे मकसद सिर्फ यही होता है कि माने जो वजीर होते हैं वो एक तरह से माने बिलवास्ता सियासत में जो है मुदाखलत करना चाहते हैं या सियासत में जो है अपना हिस्सेदारी जो है बनाए रखना चाहते हैं। तो इसी गर्ज की वजह से जो इस तरह की सियासी निकाहें जो है होती हैं। तो अल आदिल का निकाह जो है साले बिन रजीक जो है अपनी बेटी के साथ कर दिया। अब साले बिन रजीक के माने इंतकाल के बाद यानी उसका खून हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, तो उसके बाद उसका लड़का रजीक बिन साले जो है फिर वजीर बन जाता है और वो भी अपने बाप की तरह जो है माने खलीफा अल आदिल को तमाम सियासी उमूर से दूर रखता है। मन पूरा जो है ममलिकत का जितना भी अमूर सल्तनत है सब अपने हाथों में जो है उसे ले लेता है। तो अल आदिल फिर क्या करता है, वो जो है माने क्योंकि उसके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, इख्तिदार नहीं है, इसलिए अल आदिल जो है माने रजीक बिन साले को माने माजूल करने के लिए वो माने अपर इजिप्ट का जो गवर्नर थे शावर, उसको जो है उसकी मदद को तलब करते हैं। तो शावर जो है 1163 साल में जो है काहिरा में जो है फौज कशी करता है और रजीक बिन साले को शिकस्त दे देता है और इस तरह से काहिरा पर जो है वो काबिज और मुतसर्रिफ हो जाता है। लेकिन जी जो उस वक्त जो वज़रा का जो माने जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक माने तरीका रहा है कि उमुल सल्तनत हम अपने ही हाथों में रखेंगे, खलीफा को माने सिर्फ बराए नाम जो है वो माने खलीफा रहेगा। तो शावर भी जो है वही रवैया अपनाया रहा। तो लेकिन फिर 9 महीने के बाद, 9 महीने गुजर जाने के बाद शावर को जो है खुद उसी का एक लेफ्टिनेंट जो है दिलगाम जो है वो जो है उसको माजूल कर देता है। अपनी माजूली के बाद शावर दमिश्क के सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की तरफ रुजू करता है और उससे मदद तलब करता है। नूरुद्दीन महमूद जंगी इसके बाद अपने एक सिपह सालार शिरूख को फौज लेकर शावर के मदद के लिए भेजता है। शिरूख फिर अपने फौज को लेकर मिस्र में आता है और मिस्र के एक मकाम बल्बीस में साल 1164 में जो है एक जंग में दिलगाम को जो है कत्ल कर देता है। अब इसके बाद फिर शावर को जो है अपना पूरा जो है वजीर सल्तनत जो है उसे हासिल हो जाता है। लेकिन इसके फौरन बाद ही शावर और शिरूख में किसी वजह से जो है आपसी में झगड़ा हो जाता है और शावर जो है शिरूख के साथ बदअहदी करता है। जिसके बाद क्या होता है कि शावर जो है फिर जेरूशलम के बादशाह अमोल्रिक को जो है मदद के लिए गुहार लगाता है। तो इस तरह से अब क्या होता है कि 2 बैरूनी ताकतें, एक दमिश्क और दूसरा यरूशलेम की जो है सल्तनत जो है काहिरा के अंदरूनी सियासी मामलात में जो है दखल देना शुरू कर देते हैं। तो जेरूशलेम के बादशाह की अमोल्रिक को भी जो है एक मौका मिल जाता है कि वो इसी बहाने जो है मिस्र के सियासी मामलात में जो है अपना दखल अंदाजी शुरू करे। साल 1164 और 1167 इन 2 मौकों पर जेरूशलेम के बादशाह जो है मिस्र में जो है अपनी फौज को लेकर आता है। लेकिन उसको अपना कोई सियासी मकसद जो है इन दोनों मौकों पर जो है हासिल नहीं होता है और मजबूरन जो है फिर अपने फौज को लेकर जो है वो वापस जो है चला जाता है। लेकिन साल 1168 में तीसरी बार यरूशलेम का राजा की अमोल्रिक मिस्र पर हमला करता है। अब इस बार शावर क्या करता है कि वो
शिरुख के साथ जो है अपना जो है अलायंस जो है माने शुरू बनाता है, उसको अपना जो है हलीफ इस मतलब बना लेता है, जो पहले उसका हलीफ बना हुआ था। तो यरूशलेम के बादशाह के खिलाफ में जो है शिरुख को शावर जो है अपना जो है हलीफ माने हलीफ बना लेता है। और जब 1168 में इजिप्ट पर यरूशलेम का बादशाह हमला करता है तो शावर क्या करता है कि जो फुस्ताद जो पहले जो है माने मिस्र का जो माने पुराना जो दारुल सल्तनत था उस शहर को जो है पूरा आग लगा देता है ताकि सलेबी फौजें जो है इसका ना मुहासरा कर सके और ना इस पर जो है अपना कब्जा जो है जमा सके। मजबूरन क्या होता है कि ये माने अमालिक जो था जो यरूशलेम बादशाह था उसको अपना फौज लेकर जो है वापस फिर जो है चला जाना पड़ता है और उसे इस बार में जो उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती है। और बरक्स इसके शिरुख जो है खुद जो है माने मिस्र पर जो है वो फतह कर लेता है और फिर 1169 साल में काहिरा को भी जो है फतह कर लेता है। और बाद में शिरुख क्या करता है कि ये शावर को ही जो है वो मरवा डालता है। अब शावर के मर जाने के बाद जो है अब पूरा जो है माने क्या कहता है कि ये दमिश्क का जो जंगी हुकूमत थी अब उसका एक तरह से जो है यहाँ पर मिस्र में जो है फिर जो है उसका जो है एक तरह से हुकूमत हो जाती है क्योंकि शिरुख जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जंगी का ही जो है सिपह सालार था। अब लेकिन ये क्या कहते हैं कि शिरुख जो है फिर जो है वो जो है अब यहाँ का माने मिस्र का जो है वो एक नया वजीर बन जाता है। माने फातमी खलीफा अल आदिल जो है शिरुख को जो है वजीरुल सल्तनत जो है माने नामजद कर देता है। लेकिन शिरुख जो है कुछ दिनों के बाद जो फिर वो इंतकाल कर जाता है। अब शिरुख के इंतकाल के बाद उसका जो भतीजा था सलाहुद्दीन अय्यूबी, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी को फातमी खलीफा आदिल जो है वजीरुल सल्तनत बना देता है और मिस्र का जो है वो गवर्नर उसे बना देता है। अब इस तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है मिस्र के सियासत में जो है उसका जो है माने दखल अंदाजी करता है और एक तरह से जो है उससे जो है इक्तदार जो है मिल जाता है। 2 साल के बाद 1171 में फातमी खलीफा अल आदिल का जो है इंतकाल हो जाता है। अब अल आदिल के इंतकाल के बाद जो है पूरा जो है फातमी जो माने सिंहासन जो है या जो थ्रोन जो है वो पूरा का पूरा खाली पड़ जाता है। अब ऐसी हालत में जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है खुद जो है मिस्र का सियासी इक़्तिदार जो है हासिल कर लेता है और मिस्र पर जो है वो काबिज हो जाता है और फातमी खिलाफत यही से जो है उसका खत्म हो जाता है और मिस्र में जो है अय्यूबी सल्तनत की जो है बुनियाद पड़ जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी चूंकि सुन्नी मुसलमान था इसलिए वो बगदाद के अब्बासी खलीफा के साथ जो है माने क्या कहता है उसको जो है उसका बैत जो है वो तस्लीम कर लेता है। माने ये माने यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है अब्बासी खलीफा के मातहत में चला जाता है और उसके मातहत में जो है फिर जो है वो यहाँ पर माने हुक्मरानी करना शुरू कर देता है। और फिर बाद में अब्बासी खलीफा के तरफ से उसको माने खिताब सुल्तान का खिताब जो है उसको अप्रूवल भी मिल जाता है और उसे खिलत भी अता हो जाता है। यानी अब्बासी खलीफा भी जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो है माने मिस्र का जो है सुल्तान जो है कबूल कर लेता है। अब इधर माने आपका दमिश्क में साल 1174 में जो है नूरुद्दीन महमूद जंगी भी इंतकाल कर जाता है। अब उसके इंतकाल के बाद उसका लड़का जो था अस्साल इस्माइल अल मलिक वो जो है अलेप्पो की तरफ जो है माने
हलब की तरफ जो है भाग जाता है और फिर वहीं पर हुक्मरानी करने लगता है 1181 साल तक। 1181 साल में नूरुद्दीन महमूद जंगी का लड़का फिर इंतकाल कर जाता है। अब फिर उसके इंतकाल के बाद अलेप्पो शहर पर जो है सलाहुद्दीन अयूबी जो है 1183 में जो है काबिज हो जाता है और वहां पर जो है फिर जंगी हुकूमत को भी जो है खत्म कर देता है। तीसरा सन क्या देखते हैं कि मिस्र में अल-आदिल के इंतकाल के बाद फातिमी खिलाफत वहां खत्म हो जाता है और नूरुद्दीन महमूद जंगी का इंतकाल हो जाता है माने दमिश्क में। तो इस तरह से दमिश्क में जंगी हुकूमत खत्म होती है और मिस्र में फातिमी हुकूमत खत्म होती है। फिर इन दोनों ही जगहों पर सलाहुद्दीन अयूबी जो है अपनी जो है हुकूमत जो है वहां शुरू करता है और वहां से जो फिर अयूबी हुकूमत की जो है बुनियाद पड़ जाती है। तो ये था, तो इस तरह से फातिमी खिलाफत खत्म होती है और सलाहुद्दीन अयूबी का जो है फिर उरूज होता है और फिर आगे जो है फिर ये सलाहुद्दीन अयूबी जंग हित्ती में जो है मैंने सलीबियों को शिकस्त देता है। फिर तीसरी सलीबी जंग होती है और फिर उसमें जो वो कामयाब होता है। तो ये था फातिमी खिलाफत के ज़वाल और इख्तिताम के बारे में और सलाहुद्दीन अयूबी के अरूज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।